कोई न जाने तुमरा ऊँचे देव, सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम ते हो। तुमरी गत मित नानक दास, बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हराय। श्री हरि कृष्ण धियाही है, जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया, घर नानक आवे ताय। सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होय सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान करके भला जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। नाम जपिया वंड छकिया, देख लाई तेग वाही। देख के अनडिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके भला जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लवाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चीरे गए। गुरुद्वारे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी भला जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके भला जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवनगा सदका, सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियाय। देव ते फतेह बिरद की पैठ, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले भला जी। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान रहत दान। भवेक दान विसाह दान, भरोसा दान धन सिर दान। नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल। धर्म का जयकार भला जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पद रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया। खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दी दात प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण। नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे। करुणा निधान समरथ गुरुदेव। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ, ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੈ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਓ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵਨ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੁਹਰਾਗਿਆ। ਮਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮਿਲ ਬੋਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 21 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
कि अज फिर आपां निरंतर अमृतमयी बाणी दी विचार दे नाल जुड़न जा रहे हैं। वैसे तो सतगुरु जी ने सानू सुतियां नूं जगाउंदियां आखिया भी इत्थे ते पल भर दी भी खबर नहीं, पर फिर भी असीं अपने आप नूं भागां वाला समझिए कि जो सानू फिर अमृतमयी बाणी दी विचार नाल जुड़न का सुभाग समा मिल रहा है। ते गुरु साहब ने हुक्म भी बख्शिया, अपने गुर ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। तुसीं अपने उस गुरु तो बलिहारे जाओ जिस गुरु साहब दे नाल जुड़ के तुहानू अठे पैर मालिक दा जस गाउणा आ जाए। असीं उस गुरु तो बलिहारे जाना, ते किस गुरु तो? बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। जो शब्द गुरु है, असीं शब्द गुरु दे लड़ लग के, शब्द गुरु दा पल्ला पकड़ के अठे पहर परमेश्वर दा जस जिहड़ा वो दिन राती असीं परमेश्वर दा जस गाउणा। पर जिहदे राहीं असीं ये जस दिन राती गाउणा है, उहदे तो असीं बलिहारे जाइए, सदके जाइए। अज इस विचार की आरंभता ते गुरु साहब ने ये पावन हुक्म की दात सानू बख्शी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जिहड़ी पवित्र बाणी की आरंभता है, भावें आपां नितनेम दीआं बाणियां विच भी जप जी साहिब की पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़ आए हैं, पर गुरबाणी एक ऐसा रस है कि जिन्नी वारी मर्जी इसदी विचार कर लो, साहिब मेरा नीत नवा। हर वारी बाणी दी विचार विच नित नवा रस सानू मिलेगा। और कमाल दी गल है कि बाणी दी विचार ऐसी है कि जिहड़ी अज बाणी दी विचार हो गई, जे अज वाली पावन पंक्तियां दी विचार कल नूं करनी पै जाए ते वो सेम नहीं। अज वर्गी विचार कल नहीं, कल नूं एक नवा रस जिहड़ा है वो प्रगट होएगा। एक वो खजाना है जिहड़ा कदे ना मुकण वाला। और सब तो वध जे गुरबाणी दे अर्थ होए ने ते जपजी साहब दी बाणी, जे सब तो वध सानू टीका मिलदा है ना गुरबाणी दा, ते वो मिलदा है जपजी साहब दी बाणी दा। जिन्नी को जिन्हों मत सतगुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने दिती, उन्हें अपने अपने अनुसार गुरु साहब की मत लैके इहदी विचार की है। आरंभता जिहड़ी है वो जप दी बाणी तो है। जिवें कुछ बाणियां दे नाम ने आपां उहदे नाल साहिब लाउने आ, जिस तरह सुख मनी गौड़ी सुख मनी, पर असीं सुख मनी साहिब कहने आ। जिस तरह राम कली दे राग दे विच आनंद दी बाणी है, असीं सत्कार विच आनंद साहिब कहने हां। इसे तरह ये अमृतमयी बाणी दी शुरुआत जप तो है, जिन्हों असीं सत्कार विच जप जी साहिब कहने हां। ये जी साहिब साडे लई सत्कार पूर्वक है। गुरबाणी नाल जिन्ना प्यार करांगे, जिन्ना गुरबाणी दा सत्कार करांगे, उन्नियां ही बख्शिशां साडे जीवन विच वरतणगीआं। असीं आप भी जुड़िए ते होरां नूं भी गुरबाणी दे नाल जोड़न दा यतन करिए, क्योंकि मुढ़ला सिद्धांत ही साडा यह है, आप जपो अवरह नाम जपावो। आप भी तुसीं जुड़ जाओ ते जिन्नियां नूं जोड़ सकदे हो उन्हां नूं जोड़ो। सतगुरु जी की पवित्र बाणी जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एकत्र की बाणी पावन स्वरूप तैयार कराया, उदों ये बाणी 30 रागां विच है। ते जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी इहदे विच सुभाएमान हुंदी है ते 31 रागां दे विच
संपूर्ण बाणी है। 31 रागां तो इलावा रागणियां भी जड़ियां ने इहदे विच मौजूद ने, जां इहदे विच परिवार है एक राग दा एक रागणियां दे रूप दे विच परिवार है, जिन्हों संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आपां जिहड़े वो आख के सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शरीरक चोला त्यागण लगिया आख्या सी, आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच। गुरु के सिखो तुसी ग्रंथ साहिब जी नाल भी जुड़ना, गुरु के सिखो तुसी खालसा पंथ नाल भी जुड़ना है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ताबियां बैठ के जिहड़ा खालसा पंथ होएगा वो फैसला करके समुची साध संगत नूं सुनाएगा। भाव गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाई च खालसा पंथ ते खालसा पंथ दी अगवाई विच आपां सारियां ने चलना। सानू ग्रंथ और पंथ दे नाल जोड़िया है। सतगुरु महाराज जी ने बाखूबी बड़े कमाल दा तत्करा जिहड़ा वो रागां दे आधार ते शब्दां दे आधार ते जिहड़ा वो तुकबंदी करके उहदी बनतर सतगुरु जी ने बनाई है, ताकि उहदे विच कोई हेर फेर ना कर सके। उस तत्करे दे आधार ते फिर असीं गुरबाणी दे नाल जुड़ना। फिर इस गुरबाणी दे विच बकायदा सतगुरु जी ने शब्दां दा जोड़ भी दिता है कि इत्थों तक जिहड़ा इस शब्दां दा जोड़ हो गया, इत्थों तक इन्ने गुरु साहब दे शब्द है, इत्थों तक इन्ने सारा जिहड़ा वो जोड़ दिता गया, ताकि कल नूं कोई भी वाद घाट करे ते सानू उस जोड़ तो पता लग जाए कि गुरबाणी दे विच कोई हेर फेर जिहड़ी है वो कीती गई है। पर वो तां होवेगा जे असीं सारे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझांगे। क्योंकि अज भी शरारती अनसर जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ते तां जोर चलदा नहीं उन्हां दा, पर जदों वो गुटका साहिब दी छपाई हुंदी है ते उहदे विच हेर फेर कर जांदे ने। पर जे तुहानूं समझ होएगी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी, ते जदों तुहाडे हत्थ विच नितनेम दा, सुखमनी साहिब जी दा ਜਾਂ कोई भी बाणी का गुटका साहब तुहाडे हथ आए, तुसीं उहनूं पढ़ोगे तां तुहानूं पता लग जाएगा भी इहदे विच कित्थे हेर फेर है। पर उहदे लई गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़ना साडे वास्ते जरूरी है। और आरंभता विच ही हथ जोड़ के बेनती करदा चलां कि अपने बच्चियां नूं भी जरूर गुरबाणी दे नाल जोड़ो, ताकि साडे आउण वाली पीढ़ी नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान होवे, ताकि कल नूं कोई भी जिहड़ा वो इहदे विच हेर फेर ना कर सके। क्योंकि अज तक आपां सुखमनी साहिब दी बाणी तां पढ़दे आए हां, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच सुखमना साहिब नहीं किते पढ़िया। पर जदों तुसीं वेखो आ मोबाइल जां कई गुटका साहिब दी छपाई ऐसी जिहदे विच सुखमना साहिब वखरा करके दिता गया है, जबकि आपां जिहड़े गुरबाणी नूं समझण वाले आ वो सुखमनी साहिब तां है, पर सुखमना कित्थों आ गया। फिर कई गुटका साहिब ऐसे ने जिन्हां दे हेठां हवन दी समग्री भी लिखी हुई है। उत्ते लिखिया तत्करा नितनेम दी बाणियां दा, ते थल्ले लिखिया होया हवन दी समग्री। जिन्हों समझ होएगी उन्हों उसे वेले उहदा मत्था ठणक जाएगा भी नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ये हवन की समग्री की कदे इजाजत नहीं दिंदी। ये बेनतियां करनियां भी तुहाडे नाल जरूरी ने। बहुत कुछ गुटका साहिब दे विच जिहड़ा वो हेर फेर कर रहे ने शरारती अनसर, पर फिर बेनती करां जे सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की सोझी होएगी, समझ होएगी, उसे वेले समझ आ जाएगी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची
ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਫਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਫਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ 8 ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ 8 ਪਹਿਰ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਤਾ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੇਵਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ 100 ਗੁਣਾ, 3 ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ 1000 ਗੁਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਨੇ ਐਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ
क्योंकि आरंभ विच ये अरदास हुंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ, किते अपनी मत लैके डोल ना जावां, तुसी किरपा करियो मैनू डोलण तो बचा के रखियो। कईयां दा उचारण हुंदा है इक ओंकार, कई कहंदे एकमकार। हर एक ने अपना अपना जिहड़ा वो मुख ते पका लिया, पर नहीं, असल विच आपां इहदा उचारण करना है इक ओंकार। इहदा उचारण इक ओंकार, न एकमकार ते न इक ओंकार है। गुरु साहब जी हुण इहदी डेफिनेशन, इहदी परिभाषा दिंदे ने कि एक अकाल पुरख परमेश्वर कौन है, उन्होंने किस जानना, किवें उन्होंने समझना। पहला भी जिक्र किया, एक दी गल सारी दुनिया कर रही है, पर एक नूं समझाउण दा यतन कोई नहीं कर रहा। गुरु साहब कहंदे जे एक दी गल कीती है ते करके छड्डणी नहीं, तुहानूं एक दे बारे सोची भी देनी है, समझ भी देनी है वो कैसा है। ते साहब जी कहंदे सतनाम, जिहदा नाम जुग हो जुग अटल है, सदीवी है, सच्चा है, जिहदे नाम ते कोई दाग धब्बा नहीं है, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। और ये भी ध्यान रखियो, हर सवाल का जवाब भी सानू जपजी साहब की बाणी चो ही मिलेगा। जिवें जिवें सवाल साडे मन च पैदा होणगे, तिवें तिवें बाणी विचों ही जवाब सानू मिल जाएगा। वो सच्चा है, उहदा नाम सदीवी है, वो जुग हो जुग अटल है, उहदे नाम दे विच कोई मिलावट नहीं है। ये नहीं कि नाम कुछ होर है ते विचों निकलिया कुछ होर है, नहीं, जैसा है वैसा ही उहदा वो परमेश्वर दा नाम है। ताई ते महाराज कहंदे तुहानू गुमराह नहीं करना। तुसी किसी भी धर्म वर्ग चों आए हो, इत्थे किसी नाल वितकरा नहीं। इक्को एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है जो सारे ते धर्म ते वर्ग दे लोकां नूं एक निशान दे हेठां इकट्ठी करके ते सारियां नूं कहा जांदा है, ध्यान रखियो कोई अल्लाह नाल जुड़न वाला है तां साहब कहंदे अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कोई किसी धर्म वर्ग का भी आया, ध्यान रखियो एक पिता एक के हम बारक, आपां सारे ही एक पिता दे बच्चे हाँ, वो है परमेश्वर। इसलिए सांझे तौर ते महाराज कहंदे जप मन सतनाम सदा, सतनाम सारियां नूं कह रहे हैं, अपने अपने मन नूं आवाज दिओ मना, जे जपना ही है ते सतनाम जिहड़ा सच्चा नाम है उस नाम नूं जप, जिन्हों जप के तेरे अंदर दी मन दी खोट खत्म हो जाए, मन दी मलीनता अंदरों खत्म हो जाए। इसलिए साहब कहंदे ओदा नाम सच्चा है, करता पुरख। करता वो कारीगर है, उन्हें सारे ब्रह्मंड नूं आप बनाया है। वो इस आसमान धरती जो भी आपां वेख रहे हैं कुदरत विच, वो कुदरत नूं साजण वाला वो आप करता है। और आपां सारे जानते हैं कि जो भी कारीगर हुंदा है, जिहड़ी भी चीज बनाउंदा है, वो चीज किते चली जाती है, कारीगर किते चला जाता है। आपां ये कपड़ा सवा के तन ते पाया, इहदा कारीगर साडे नाल थोड़ी आ गया, इते सीउण वाला किते बैठा है, पाउण वाला किते बैठा है। बिल्डिंग बनाउण वाला कोई होर हुंदा है, रहण वाला कोई होर हुंदा है। आपां गड्डियां चलाउने आ, जिहड़ा बनाउण वाला वो नाल नाल थोड़ी रहिंदा है। बनाउण वाला किते बैठा है, चलाउण वाला किते बैठा है, अलग अलग हो गए। इस पर परमेश्वर की है सारे संसार का करता हो के वो आप सारियां दे विच समा गया, किसे तो वख नहीं होया। वो ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। वो कहंदे घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहियो पुकार। जदों वो करते ने सारे ब्रह्मंड की रचना की और उहदे विच हर एक विच समा गया। क्यों समा गया? क्योंकि एक महाराज कहंदे एक नहीं, एक है
अनेक हैं फिर एक हैं। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब में चानण होए। वो एक हो के भी अनेक है, अनेक हो के भी एक है, ताई ते वो पूरा है। अधूरा एक तो अनेक, अनेक तो एक नहीं हो सकता। ये पूरा है वो अकाल पुरख परमेश्वर, आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। इसलिए सब कहते करते दे नाल पुरख भी तुसी कहना है। करता पुरख ये एक ओंकार दी विचार है। कहते परमेश्वर निरभव, कई इनू निरभव भी कहते हैं। ध्यान रखियो, भो भब्बे उत्ते होड़ा लग जाना है, पर इत्थे भब्बे उत्ते होड़ा नहीं, उहदे नाल कूड़ा लगा होया है। निरभव कईयां दे मुख तो सुनिया, कई निरभव कह जाते हैं, पर नहीं, निरभव नाल कूड़े दी आवाज देनी है। उन्हों किसे दा भी भै नहीं है, उन्हों किसे दा भी डर नहीं है। वो हर प्रकार दे भै डर तो रहत है अकाल पुरख परमेश्वर। निर्वैर, ओदा किसे नाल वैर नहीं है, ना ही वो किसे नाल वैर करदा है, ते ना ही ओदे नाम जुड़न नाल जुड़न वाले किसे नाल वैर करदे आ, क्योंकि वो निर्वैर हर एक नूं वैर तो रहत रखण वाला है। ओदा किसे दे नाल भी वैर नहीं। अकाल मूरत, वो काल तो रहत है। साडे उत्ते काल दा प्रभाव है, बचपन है, जोबन है, बुढ़ेपा है, पर उहदे उत्ते काल दा कोई प्रभाव नहीं है। अकाल, काल तो रहत की है। मूरत, तत्ते नूं सियारी मूर्ति, ओदी जिहड़ी होंद, ओदी जिहड़ी हस्ती है ना, वो काल समय तो रहत है। काल समय का प्रभाव उहदे उत्ते नहीं पै सकता, क्योंकि समा भी उहदे हुक्म विच है। जिहड़ा काल उस मालिक ने बनाया वो भी ते उहदे हुक्म विच है, इसलिए उहदा प्रभाव मालिक दे उत्ते नहीं पै सकता। सब कहते ये सारा तमाशा ही काल दा है। सकल काल का किया तमाशा, पर ये सारा तमाशा काल दा, पर उस काल दा असर परमेश्वर ते नहीं, उहदी मूरत ते नहीं है। ताही ते उहदी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। दुनिया ने सारियां दियां तस्वीरां बनाईयां। एक मैसेज होर आया सी, जदों असी गुरबाणी का शब्द जिहड़ा हुक्म आउंदा ना बड़ियां थावां तो, अज नैटवर्क जिहड़ा इहदा समा है इंटरनेट का, ये भी ध्यान रखियो थोड़ा जिहा। इंटरनेट का समा है ते अज जिहड़ा भी हुक्म आउंदा ना, ते नाल दी नाल ही वो किते दा किते हुक्म जिहड़ा ये नैट दे राहीं घरां तक पहुंच जांदा है कि अज इस स्थान तो ये हुक्म आया, अज ये आया, अज ये आया। कई की करदे आ, कई नाल वो तस्वीर भी ला दिंदे ने। पर ध्यान रखियो, असी गुर शब्द मूरत नाल जुड़ना है। असी बनाईयां होईयां मूरत दे नाल, तस्वीर दे नाल नहीं जुड़ना, क्योंकि असल तस्वीर ते पता ही नहीं किसे नूं। जे तुहाडे विचों जां किते भी आवाज जांदी है, भी जे किसे नूं भी पता होवे कि आ असल तस्वीर है गुरु नानक साहब दी, तां जरूर खुलासा करियो, जरूर दसियो। पर होनी गुरमत अनुसार चाहिदी है। जिहड़ी असी वेखी है वो तां गुरु नानक साहब नूं पैरां तो लैके सिर तक माला ही परो के रख दित्ती। गुरु नानक साहब दी खेतीबाड़ी करदिआं ते तस्वीर दिखाई कोई नहीं। आपां खेतीबाड़ी का काम गुरु नानक साहब करते रहे ने, वो तस्वीर तां आपां विखाई नहीं। असी ते सिर्फ वो तस्वीर दिखाई जो दस्तार दे उपर दी माला ते गल दे विच भी ते गुरु साहब दे हत्थ दे विच भी। इसलिए असी जिहड़ा शब्द है उहदे विचों ही गुरु दा दर्शन होना है। इसलिए बेनती हथ जोड़ के भी जे किसी नूं पूरा भरोसा होवे, पूरा दावे नाल कवे तां जरूर खुलासा कर जावे। की पता साडे समझ तो बाहर होवे गल। जे किसी नूं समझ होवे तां जरूर सांझी करे। पर असल विच गुरु दा दर्शन की है। दर्शन देख जिमा गुर तेरा, पूरन कर्म होए
प्रभ मेरा दर्शन करना है, शब्द का दर्शन है। गुरु का शब्द जिहड़ा तुसीं सुन रहे हो, जिहड़े गुरु साहब दा, उस गुरु का दर्शन उस शब्द विचों हो रहा है। और दूसरा ये जपजी साहब जी की बाणी की पौड़ियां जिहड़ियां गुरु नानक साहब ने कोई किते उचारी, कोई जोगियां नूं समझाउंदियां, किसे थां ते पंडित नूं समझाउंदियां, लोकां नूं समझाउंदियां, दुनिया कुछ कर्म कांड करन वालियां नूं समझाउंदियां। ते जदों गुरु साहब करतारपुर आए ने ना, सारी यात्रावां करके करतारपुर आए, इत्थे आके फिर गुरु साहब ने ये बनतर बना के ते इहदा बकायदा करतारपुर विच सतगुरु जी अमृत वेले जपजी साहब दा पाठ भी करते हैं। और ये बाणी का खजाना फिर गुरु साहब जी गुरु अंगद साहब जी नूं दिंदे ने। पर ये बाणी का जाप आप करते रहे ने गुरु नानक साहब। और देखो कितनी बख्शिश है इहदे विच कि जिन्नियां शहादतां होईयां उन्हां शहादतां दे जीवन पढ़ो, ते जदों शहादत हो रही है तो वह जपजी साहब का पाठ ही कर रहे हैं। भाव आरंभता वाली बाणी साडे हिरदे विच घर कर जाए, ये बाणी का रस अंदर हिरदे विच पहुंच जाए, ते अगों बाणी का रस फिर कितना आएगा, वो फिर जिन ये चाखी सोई जाने। इसलिए महाराज कहते वो निरभव है, निर्वैर है, अकाल मूरत, उहदी जिहड़ी मूर्ति है, उहदी जिहड़ी तस्वीर है, काल तो समय तो रहता है। ना उन्होंने बचपन च दिखाया जा सकता है, ना जोबन विच ते ना बढ़ेपे विच, क्योंकि उहदे उत्ते समय का प्रभाव नहीं। अजूनी वो जूना तो रहत है, परमेश्वर किसे जून विच नहीं। जिन्हों असीं कह रहे हैं एक ओंकार, वो किसे भी जून विच नहीं, जूना तो रहत है। सैभं उदा प्रकाश, उदी होंद अपने आपे तो है, ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै। उदा कोई तात मात नहीं, कोई पिता कोई मां नहीं। साडा तो पिता मां है, हर जी पिता हर जी माता, हर जीओ प्रतिपालक। असीं ते उस मालिक दे बच्चे हां, वो साडा माई बाप है। पर उदा माई बाप कौन है नहीं दसिया जा सकता। परमेश्वर नूं पैदा करने वाला कौन है नहीं दसिया जा सकता। हाँ, इन्ना को खुलासा है कि सै भंग वो स्वयं तो है, उदा प्रकाश अपने आप तो है। कईयां ने इहदे अर्थ ये भी कीते ने कि सै भंग स्वयं नूं जदों भंग, क्योंकि सुन समाधि आप परमेश्वर की है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, चक्कर नहीं, कोई उहदी शक्ल नहीं, सूरत नहीं। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिंजे। हुण उन्हें की कीता, परमेश्वर ने अपना एक हिस्सा जिहड़ा वो अलग कर दिता अपने तो, निरंकार तो संसार बन गया, ब्रह्म तो ब्रह्मंड बन गया। कईयां ने सैभंग दे अर्थ भी कीते ने कि जदों उन्हें स्वयं नूं दो हिस्सियां विच कीता, एक ब्रह्म हो गया ते एक ब्रह्मंड हो गया, एक निरंकार हो गया ते एक संसार हो गया। हुण संसार विच जिहड़े जीव पैदा कीते ने, उन्हां नूं इसलिए पैदा कीता कि तुहाडे वास्ते एक खेड बना दित्ती है। इस खेड नूं समझ के तुसीं मेरे तक पहुंचना, मेरे तक पहुंच करनी है। ते जिहड़े जिहड़े पहुंच कर गए उन्हां नूं गुरमुख किया, जिहड़े नहीं कर सके उन्हां नूं मनमुख किया गया। वो अपना मूल गवा गए, ते जिन्हां नूं समझ आई वो लाहा लैके एक अकाल पुरख विच लीन हो गए। एक खेड है, जगत भी एक खेड है। आवन जान एक खेल बनाया। इस आउण जान दे खेल विच, क्योंकि जिन्ना चिर खिडारी खेड दे रूल नहीं ना समझेगा उन्ना चिर वो खेड नहीं सकता। जिन्ना चिर खिडारी नूं खेड दी समझ नहीं आएगी वो कदे मैदान विच खेड ही नहीं सकता। सानू महाराज ने दसिया जे तू खेडना है ते इत्थे आ खेड है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। महाराज कहते मैं निरंकार तो सैभंग, मैं आ संसार बना दिता। हुण तुसीं मेरी गली विच आउणा है तां फिर आ प्रेम वाली खेड है।
इत्थे हंकार वाली खेड खेडदियां नहीं आया जा सकता। इत्थे फिर इत्थे वैर वाली ईर्खा वाली खेड खेड के नहीं, इत्थे प्रेम वाली खेड खेड के चलिया जाना है। इसलिए वो अपने स्वयं अपने आपे तो है। उन्हें अपने आप नूं जदों भंग कीता ते आ संसार ते ब्रह्मंड बनिया। हुण उस अकाल पुरख दी प्राप्ति, ओदी सोझी, ओदा ज्ञान, ओदा चानण वो किवें होएगा? सब कहंदे गुर प्रसाद, प्रसाद पप्पे दे पैर थले रारा, अद्धे रारे दी आवाज। इहदा प्रसाद भी नहीं है, सस्से नूं शशा नहीं आपां बोलना, क्योंकि प्रसाद कड़ा प्रसाद आपां लैंदे आ। यह प्रसाद, प्रसाद दा अर्थ हुंदा है किरपा, ज्ञान दी किरपा, गुरु दी किरपा जदों तुहाडे ते होवेगी फिर तुहानूं चानण होएगा। देखो अगे भी जिक्र किया, भाई गुरदास जी ने आख्या सतगुर नानक प्रगटिया। नानक जी का नाम संसारिक तल ते रखिया गया, पर नानक जी दे रूप विच जदों सच्चा ज्ञान प्रगट होया, सतगुर सच्चा ज्ञान नानक जी दे रूप विच प्रगट होया, मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। कहते जदों सतगुरु नानक जी प्रगटे, भाव सच का ज्ञान प्रगट किया, ते जिहड़े कर्म कांडां दी वहम भरमां दी धुंध सी ना, वो हट गई, वो मिट गई, चानण ही चानण हो गया। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोवा। वो सूरज केड़ा सी? सूरज ते सदियां तो चढ़ रहा है, वो सूरज सी जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। वो गुरु दा ज्ञान दा सूरज सी। जदों नानक जी दे रूप विच सच दा सूरज चढ़िया ते फिर चारे पासे कर्म कांडां दा नाश हो गया, वहम भरम खत्म हो गए। इसलिए कहते वो गुरु दी किरपा, गुरु दे ज्ञान दी किरपा नाल मिलदा है। अगों गुरु साहब जी किरपा करते हैं। जप इस बाणी का नाम जप है। ये भी दो अर्थ ने, एक तो बाणी का नाम रखिया भी जप, इनू तुसी दूसरा अर्थ है सिमरना। इहदा अर्थ है उस मालिक नू याद करना, उन्हों जपना। जपो तो एको नामा। सब कहते इनू बार बार रिपीट करो, इनू बार बार तुसी जपना है। इहदा मतलब गुर प्रसाद तक साडे लई मूल मंत्र दे दिता। ये साडा मूल मंत्र, मंत्र मैंने उपदेश, ये मूल उपदेश है तुहाडा, जिन्हों तुसी बार 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 जपना है। क्यों जपना? ताकि पता लग जाए कि वो सत नाम है, करता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, अजूनी सै भंग है। ये सारी समझ कदों आएगी? जदों तुसी जप उन्हों बार बार जपोगे, बार बार उन्हों सिमरोगे, बार बार उन्हों चेते करोगे, तां जाके फिर उहदी समझ आउणी है। हुण अगे गुरु साहब जी किरपा जिहड़ी आ वो करदे हन। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आप जी सूझवान हो, आप भी बाणी पढ़न वाले हो, अभ्यासी हो तुसी बाणी दे नाम दे। कुछ गल्लां आपां बाणी दे नाल नाल कुछ गल्लां दी नोट करनियां ने। जिवें पहलां ही आख्या भी नाल नाल शब्दां दा जोड़ दिता गया, वो जोड़ वल भी ध्यान रखना है। जिवें आपां हुण आरंभ कीता गुर प्रसाद, महाराज ने उहदे पिछे दो डंडियां लातियां। अगे फिर सब ने जदों जप लिखिया ना गुरु नानक साहब ने, ते उस तो पहला भी दो डंडियां ने, उस तो बाद भी दो डंडियां ने। इहदा मतलब दोवां नूं सतगुरु दोवां डंडियां दे विचकार जप नूं रख दिता है। भाव कहंदे इहदे वल ज्यादा ध्यान दिओ, इहदे वल तुसीं ज्यादा खास तौर ते ध्यान देना है तुसीं, क्योंकि ये उपर जिहड़ा मूल सानू मंत्र उपदेश दिता उहदे नाल भी जुड़ना है, और ये जप जिहड़ा अगों उपदेश मिलना है उहदे नाल भी ये जुड़ना है।
ਹੁਣ ਆਖਿਆ महाराज जी किनू असीं जपना। साहब कहंदे आ जिहड़ा मूल मंत्र दिता है ना इहदे च जिहड़ी सोझी है। ते पुछिया महाराज जी होर इहदे बारे सानू चानना पाओ। ते साहब कहंदे आद सच ये नहीं कि वो पहला सी ते अज नहीं है। वो निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी साहब अंग वो पहला सी नहीं। महाराज जी कहंदे ओदा सच एक होर समझ लो। और इनू श्लोक भी आपां कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जदों सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ते हैं ना ते सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़दे आ 17वां श्लोक जदों आपां पढ़दे आ उहदे विच भी इसे तरह ही जिहड़ा श्लोक पढ़दे आ हाँ उत्थे सिहारी बिहारी का फर्क है। अर्थ सेम ने बस अर्थ जिहड़ा पढ़न लग्गिया सिहारी ते बिहारी का फर्क रखना। क्योंकि वो गुरु अर्जन देव जी उचारते हैं ये गुरु नानक साहब जी उचारते हैं पर है तो श्लोक है। एक श्लोक आपां अखीर ते आके जदों 38वीं पौड़ी का पाठ करांगे फिर सानू श्लोक पढ़न वास्ते मिलेगा। गुरबाणी दे पाठ दे नाल नाल ये समझ रखनी भी साडे वास्ते जरूरी है। साहब जी ने फिर आख्या आद सच जदों ये संसार नहीं सी बनिया जदों ब्रह्मंड की रचना नहीं सी हुई जदों ये समय की चाल नहीं सी चली उदों भी वो आप अटल सी सच दे रूप दे विच। जुग आद सच जुगां दे आरंभ विच भी वो आप सच है। जदों इस कुदरत नूं बनाया कुदरत की रचना कीती है पहले ते आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है। अपने नूं आपे आप साजिया फिर अपने नामां दी रचना भी आप कीती फिर दूजा कुदरत नूं साजिया। ते कहन लगे वो जिहड़ा कुदरत नूं साजिया ना जुग दा जिहड़ा आद सी उदों भी वो सदीवी है। ओदी होंद ओदी हस्ती सच वाली है। ये नहीं कि जदों जुग आरंभ होया उदों वो सी। मारे कहंदे नहीं है अज भी है वो है भी सच अज भी वो सदीवी वरत रहा है। अज भी सच दे रूप विच वरत रहा है क्योंकि वो कदे ना नाश होने वाला है। कदी ओदी हस्ती मिटण वाली नहीं है। वो अज भी है। नानक गुरु नानक साहब जी कह रहे ने होसी वो आने वाले समय विच भी है। वो तीन कालां दे विच वरत रहा। असी जदों ये संसार बनिया उदों नहीं सा। असी ते अपनी अपनी उम्र का हिसाब ला लो जिन्नी जिन्नी है 10 20 30 40 50 60 70 80 जिन्नी भी है असी ते उदों दे हां। पर उस तो पहला वो परमेश्वर मौजूद है। असी अज हाँ कल नहीं होवांगे। कल नूं होर अगों नवीं पीढ़ी तुर पेगी। परमेश्वर का कल नूं भी होएगा। वो समा जिहड़ा बीत गया उदों भी सी अज भी है वर्तमान विच भी वरत रहा आउण वाले समय दे विच भी वो वरतेगा। वो कदे नाश होने वाला नहीं है क्योंकि आद पूरण मध पूरण अंत पूरण परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिहड़ा साहब जी कहंदे हो सी धी सच वो आउण वाले समय दे विच भी जिहड़ा है वो सदीवी सच दे रूप दे विच जुग हो जुग अटल। जिन्हों जपजी साहब विच महाराज ने कहा कहते आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। वो जुगां जुगां दे विच इको ही वेश दे रूप विच है। इसलिए नाल अगे जिहड़ा हुण शुरू होना उहनूं असीं जपजी साहब जी की पहली पौड़ी आखना। पहली पौड़ी की शुरुआत जिहड़ी आ वो अगलियां पंक्तियां तो होनी है। यतन तां यही सी कि अज पहली पौड़ी की विचार जिहड़ी है वो नाल कीती जावे क्योंकि विचार जपजी साहब जी की तुसीं सुन चुके हो बड़े विद्वानां पासों। पर समय के मुताबिक जिहड़ा इन्नी को विचार ही गुरु साहब ने करवाई है क्योंकि आरंभ विच ही बेनती कीती सी कि साहिब मेरा नीत नवा। जे इसे दी विचार जे कल नूं आपां नूं करनी पै जाए ना ते कल नूं ये विचार नहीं कल नूं एक नवां ही रस उभर के सानूं जिहड़ा वो मिलेगा क्योंकि वो नित नवें रूप विच है। कदी तुसीं कहा भी मैं जपजी साहब का पाठ इन्ने साल तो कर रहा हुण मैं अक गया थक गया नहीं कहते क्योंकि नित नवां रस मिलता है बाणी चों।
एक वो रब्बी बाणी का खजाना सानू दिता है। सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। उस करते ने आप किरपा करके ये मूहों जिहड़े बोल कढ़वाए ने, ते किते गुरु साहब जां भगत साहबाना ने मोहर नहीं लाई कि ये साडी है। उथे आख्या जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान दे लालो। उथे आख्या तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। उथे आख्या वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। इहदा पाठ असीं नित नेम दे विच करना है। और फिर बेनती करा कि बच्चियां नूं भी नाल जरूर जोड़ो, अपने धीआं पुत्रां नूं भी जोड़ो। कम से कम जपजी साहब दी बाणी नाल तां जुड़ना साडा जिहड़ा जरूरी बनदा है। इहनूं कंठ भी करिए और इहदी बाणी दी सूझ समझ भी आपां रखिए, ताकि एक अकाल पुरख जी नाल जुड़ के साडा ये जीवन ये जन्म लेखे लग सके। महाराज जी कहंदे तू जप, ते जप दे विच आपां की करना है, ओदी दात मंगनी है। अपना नाम देह अपना नाम देह, विसरना ही दातार विसरना ही दातार। अपना नाम देह अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात। नानक चाहे हो नानक चाहे हो, अपना नाम देह अपना नाम देह। ये अरदास है साडी गुरु पातशाह दे चरनां च, ताकि असीं परमेश्वर दे नाम नूं जपदिआं लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले जीवन बना सकीए। कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा ते आप समुची गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं अज इस अस्थान ते लड़ीवार गुरबाणी दी विचार आरंभ होने ते आप समुची संगत नूं बहुत बहुत आप जी नूं बधाइयां। अरदास करके जाओ कि महाराज साडियां नित हाजरियां जिन्ना चिर सवास चले नित हाजरियां लवाउंदे रहो ते इह निरंतर बाणी दे नाल आप ही किरपा करके जोड़दे रहो। सतगुरु सबना नूं चढ़दी कला बख्शण, पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसा लईए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।